अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन। अमेरिका का रिचर्ड मैकनी आया था मुसलमान को मारने के लिए, लेकिन ख़ुद मुसलमान हो गया। आखिर कैसे हुआ ये सब मामलात कि मुसलमान को मारने आया लेकिन ख़ुद मुसलमान हो गया। रिचर्ड मैकनी कहता है कि वो अपनी ज़बानी कहता है कि मैं मुसलमान का और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। जब मुसलमान को मारने आया तो ख़ुद मुसलमान हो गया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। आखिर कैसे? तो मेरे अहबाबों में पूरी जानकारी दूंगा आपको। उससे पहले आप अगर पहली मरतबा चैनल पे आए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरे अहबाबों, सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात के नज़दीक ये वीडियो रख रहा हूँ। इस वीडियो को देखें। ये वीडियो है इंग्लिश में, तो काफ़ी सारे लोग समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझेंगे उसको मैं अपनी ज़बानी इंशाअल्लाह ताला समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। One time my wife and I went to a DSW and I saw in the distance these two women in black burqas in my store. I cried as I prayed for enough strength to go over there and break both their necks. I was just angry. I was just full of hate, and it just fed off itself. At that point, I was drinking a half gallon of vodka every 2 days. I had devised a plan, create my own IED, homemade bomb, and I was going to set it off right outside the Muncie Islamic Center. 200 plus killed or injured. That was the plan. I saw an opportunity to do one last thing for my country. This was my rationale. I knew I would end up in a federal prison with a needle in my arm. I didn't care. My hatred of Islam, it was the only thing that was keeping me alive. So one day my daughter comes home, 2nd grade maybe. She was telling me about this little boy who sat across from her. His mom came to get him. She said she had scarves on her and she had a dress all the way down to her feet and you couldn't see her on nothing but her eyeballs. At that point I snapped, started spewing things out of my mouth that should never be said in front of children or anything. She didn't say anything. It was the look on her face. I remember my daughter looking at me like I was absolutely the craziest person on the face of the earth. She was my little buddy. Yeah, she used to say we were road dogs. I know I saw it in her eyes. I made her question that love. And that's when the light bulb came on. I decided to give the people of this community one more chance. So I went to the Islamic Center, see a gentleman in the shoe room taking off his shoes. He looks at me and he smiles. He said, "Can I help you?" And I said, "Yeah, I want you to teach me about Islam." So he went and he gave me a Quran. "Read this. Come back when you have questions." So I did. And I would see things in the book. I'd be like, "There it is. I got him right there. Explain that to me." And they would. This was a kind of awakening. Long story short, 8 weeks after that first day I stepped into the Islamic Center, I became a Muslim. I'm a Muslim, a veteran, and a proud American. I had learned that I was completely wrong about everything that I felt. You know, Judaism had a message, Christianity had a message, Islam had a message. Funny thing is, though, it was the same message. It was about peace, and it was about love. Please join me in welcoming Mr. McKinney. My big thing is now to stop the hate. Nothing good has ever... मेरे अहबाबों, आपने इस वीडियो को देख लिया। काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझे उसको अब मैं अपनी ज़बानी समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे अहबाबों, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ फरमाइएगा। इस वीडियो को आपने देख लिया। इस वीडियो में रिचर्ड मैकनी कहना यही चाहते हैं कि मैं मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस्लाम और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं 2 लड़की को देखा था, मुस्लिम लड़की को नकाब में। मैं सोचा कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए, इतनी क़ुव्वत आ जाए कि मैं इसके गर्दन को मरोड़ दूं ताकि ये मर जाए। फिर मैं सोचा कि मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिससे काफ़ी सारे मुसलमान मर जाए। तो मैं घर में एक बम तैयार करने लगा।
एक बम बनाने लगा और सोचा कि मैं इसको ऐसी जगह रखूं जहां काफ़ी सारे मुसलमान सिर्फ मर सके, कम से कम 100, 200, 300, 500 लोग मर सके। तो मैं सोचा कि मस्जिद में इस चीज़ को रख दूं ताकि जुमा के रोज़ मस्जिद में काफ़ी सारे लोग आते हैं तो काफ़ी सारे लोग मरे। तो मैं सोचा सबसे पहले मुसलमान और इस्लाम को जानने की कोशिश करता हूं। तो एक रोज़ मैं मस्जिद में पहुंच गया। जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो क्या देखा कि एक शख्स सीढ़ी पर, मस्जिद के बाहर सीढ़ी पर एक शख्स अपने जूते को निकाल रहा था। तो वो शख्स मुझसे पूछा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूछा कि क्या कोई मदद चाहिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो रिचर्ड मैकनी कहते हैं कि हाँ मुझे एक मदद चाहिए। तो क्या? तो रिचर्ड मैकनी कहते हैं कि मुझे यही जानना है कि मुसलमान को जानना है और इस्लाम धर्म को जानना है, क्या आप मुझे बताएंगे। तो वो शख्स जाता है मस्जिद के अंदर और वहाँ से कुरान ले कर के आता है और रिचर्ड मैकनी को दे देता है कि लीजिए इसको पढ़िए और समझिए, और जो चीज़ न समझ में आए आकर के हमसे पूछ लीजिए। तो रिचर्ड मैकनी कहते हैं कि हाँ इस चीज़ किताब को ले करके मैं कुरान मजीद को ले करके मैं अपने घर आया, उस चीज़ को पढ़ा और इस चीज़ को समझने की कोशिश भी किया। कुछ दिनों के बाद मैं उसी मस्जिद में गया और मस्जिद में जाने के बाद मैं कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो आप सोचें ज़रा, कुरान की ताकत देखें, आप इस्लाम की ताकत देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकाम के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक भी सबसे प्यारा, सबसे अच्छा दीन कोई है तो वो दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखिए उसके अंदर जब उसने कुरान पढ़ा तो कैसे हकीकत का सामना हुआ। वो शख्स जो कहता है सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ मुसलमान का, मैं मुसलमान को देखना नहीं चाहता, इस्लाम को देखना नहीं चाहता, इस्लाम को, मुसलमान को दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश करता था। लेकिन अब वही रिचर्ड मैकनी कहता है, अमेरिका का वो बंदा रिचर्ड मैकनी कहता है कि अब मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जो चीज़ मुसलमान के दुश्मन है मैं उन तमामी में मोहब्बत लाना चाहता हूँ। एक दूसरे से सब मोहब्बत करें, ये दुश्मनी ख़त्म करें। देखे ज़रा कैसे अक़ीदा और अक़्ल दोनों ठिकाने आ गए, मुसलमान हो गया। कुरान की वो ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। तो मेरे अहबाबो देखिए इतना ताकतवर रिचर्ड मैकनी अमेरिका का वो मुसलमान हो गया जब अक़्ल ठिकाने आई। तो मेरे अहबाबो आपकी राय इस वीडियो को लेकर के क्या है, बराए करम कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदाफिज़, बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम।